Today is our fourth day in Meghalaya. We have been enjoying the hospitality of the wispy clouds and the wonderful people for the past 3 days, where we explored parts of Shillong and neighboring areas. We are heading for Sohra, which is about 53 kilometers from Shillong, located in the East Khasi Hills of Meghalaya. This place has been popularized by the Britishers as Cherrapunji, and you want to know why? Because they couldn't pronounce Sohra. मतलब कुछ भी प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा था तो जगह का नाम बदल दिया. सोहरा को वो चेरा बुलाने लगे and also added Punji, which means villages. So it came to be called as Cherrapunji for more than 150 years. Now it has been officially renamed Sohra, restoring its original glory. This place has been the epicenter of Khasi tribal history and culture, and the name should depict so. और सोहरा वर्ड में जो ऑथेंटिसिटी और अपनापन है वो मुझे चेरापुंजी में नहीं लगता है. It will take us about 2 hours to reach Sohra from Shillong by car. Before going to our hotel, we will first visit a few destinations on the way. So let's go! We have reached our first destination for the day, Garden of Caves. The entry fee is rupees 100 per adult and rupees 50 for children below the age of 12 years. So when you think of Garden of Caves, think of it as a park. But instead of swings and merry-go-rounds, you have natural caves and waterfalls. Instead of slides, you can walk on bamboo bridges. I think this is the best way to describe it. It's a mini version of almost everything that you will find in Meghalaya. There are 11 spots inside the garden. There are caves, all naturally formed, beautiful waterfalls, and many other interesting spots to visit. This is one very interesting spot which is called Dawai. It is said to have medicinal properties, and if you drink it with the faith and belief in the water, it is said to cure ailments. So I'm waiting there for my turn, and since I was shooting the video, I wanted the frame to be all clear of people and only me, but I don't think that is possible. So I've just taken my water. It's really cold, really nice. I don't know about the medicinal properties, but it tastes really nice. So here in the Garden of Caves, navigating from one spot to another felt like a treasure hunt. There are directions given all over. Also there are local guides to help you in any way possible. तो जब भी हम लोग एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पर जा रहे थे, it felt like a game कि स्पॉट नंबर 5 पे हमें ये केव मिला है. अभी हम आगे जाएंगे और अभी हमको नेक्स्ट स्पॉट पे कौन सा ट्रेजर डिस्कवर करने को मिलेगा. So when you are going from one spot to another, don't rush, experience everything, take in all of the nature and all of the natural wonders that you will get to see there. Next, we are going to one of the highest plunge waterfalls in India, which is Nohka Likai Falls. It has a very, very tragic legend attached to it. So the literal meaning of Nohka Likai is jump off Likai. Noh means jump, and Likai was the name of the woman who jumped off from this cliff. The story is very, very tragic. You should read about it. But no matter how tragic the legend is, the views are just mesmerizing. You can't take your eyes off the view. लंच किया. यहाँ पर ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, थाली ऑप्शंस थे, तो मैंने चिकन थाली खाई, पर खाना बहुत अच्छा था. अच्छे से मजे से लंच करके हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर.
Next up, we are going to Mosmai Caves. It's a whole different world beneath the world. It is all naturally formed by water erosion. There are beautiful stalactites and stalagmites. It's like all the geography lessons right in front of your eyes. It might feel tight and confining in some places, but the experience is worth it. And you might want to avoid it if you are claustrophobic. इसके अंदर हमें तो लग रहा है कि हम कोई खुफिया मिशन पे आए हैं और दुनिया से छुपते छुपाते एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, बट आप इजीली निकल सकते हैं। कहीं कहीं पे छोटा स्पेस है, मोस्टली ओवरऑल चलने की जगह है, बट कहीं कहीं पे आपको एकदम क्रॉल करके बैठ के जाना पड़ेगा। ऑल्सो एट सम प्लेसेस क्योंकि पानी केव के अंदर पानी ही है, स्लिपरी है, तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। जब हम लोग अंदर जा रहे थे तो पापा को तो आधे से ज़्यादा लोगों ने कहा था कि बाबा आप मत जाइए, आप तो जा ही नहीं पाइएगा। एंड आयरनी देखो गाइस, पापा इज़ द वन हु इज़ लीडिंग अस। और कुछ भी हो जाए, हम धरती के अंदर क्यों ना घुस जाएं, पर हम लोग फ़ोटो खींचना नहीं छोड़ेंगे। और मेरी बहादुरी देखिए कि मैं पूरे टाइम वीडियो बना रही हूँ कि गिर गए तो गिर गए, लेकिन वीडियो नहीं छोड़ेंगे बनाना। अगर आप यहाँ आए हैं तो एक बार तो ये एक्सपीरियंस करना बनता है। मैंने जितना इसके बारे में पढ़ा था, आई वॉज जस्ट नॉट रेडी टू कम हियर, बट माई हस्बैंड कन्विंस्ड मी एंड आई एम वेरी ग्लैड नाउ दैट ही डिड। अब हम फाइनली आ गए हैं केव के बाहर। मुझे लगा नहीं था कि मुझे इतना मज़ा आएगा केव के अंदर। इसके एकदम बाजू में ही सेवन सिस्टर फॉल्स हैं। इसको लोकल लैंग्वेज में ये कहते हैं, जिसको मैं गलत नहीं प्रोनाउंस करना चाहती हूँ, तो आप पढ़ लीजिए। ये फॉल्स बारिशों में बहुत ही सुंदर दिखते हैं। हम लोग मई में आए हैं तो अभी इतनी बारिश नहीं हुई है, हमें फॉल्स देखने मिल गए, बट बहुत ग्रैंड नहीं दिख रहा है अभी। रास्ते में ही हमारे ड्राइवर साहब ने गाड़ी रोक करके हमको बांग्लादेश का व्यू दिखाया। तो वो जो सामने पूरा प्लेन एरिया दिख रहा है वो पूरा बांग्लादेश है। इसको व्यू करने के लिए भी बहुत सारे व्यू पॉइंट्स है, बट हम वहाँ नहीं गए, हमें रास्ते से ही ड्राइवर साहब ने दिखा दिया। अब हम लोग पहुँच गए हमारे होटल। हमारे होटल का नाम है चेरापूंजी हॉलीडे रिजॉर्ट। बहुत ही अच्छे लोकेशन पर है। जाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बट बहुत अच्छा है। नाउ लेट मी गिव यू अ क्विक रूम टूर। तो ये है हमारा रूम, अच्छा डिसेंट रूम है। ये है व्यू, ये हूँ मैं, ये हमारा वॉशरूम है, कबर्ड है, ऑल द बेसिक नेसेसिटीज। तो ओवरऑल अच्छा रूम है। ये पापा का रूम है। पापा का रूम भी ऑलमोस्ट हम लोग जैसे ही है। तो रूम्स के बीच में ये ओपन स्पेस है, कॉमन एरिया है, जहाँ पर बुक्स है, गेम्स हैं, काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट एरिया। यहाँ पर आप बैठ सकते हो, चिल कर सकते हो। और मुझे तो सबसे अच्छा लगा है ये गैलरी वॉल। तो यहाँ पर जो भी गेस्ट्स आए होंगे, बच्चे बड़े, सब ने कुछ ना कुछ ड्रॉ करके, पेंट करके या अपना कोई मैसेज लिख के रखा है और उसको इन्होंने ये पूरा गैलरी वॉल में लगाया है। आई जस्ट लव इट। ये बाहर का एरिया है, एकदम सुकून भरा व्यू है और मैं अपनी चाय लेके यहीं बैठ गई हूँ। I also met a friend who was not very happy to see me. अब क्योंकि यहाँ बहुत बारिश होती है तो यहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं रहता, फ़ोन में नेटवर्क नहीं रहता,
टीवी नहीं देख सकते, कुछ नहीं कर सकते। So the resort arranged a cultural program in the evening to entertain the guests. बस ये शो एंजॉय करके हमने डिनर किया और डिनर के बाद हम सो गए। गुड मॉर्निंग गाइस। सो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। ये हमारा होटल है और ये होटल के बाजू में से जो गली गई है ये अंदर गांव में जाती है, तो हमने सोचा हम थोड़ा सा गांव में घूम के आते हैं। एक्चुअली हमारे होटल ने सुबह 7 बजे एक गाइडेड टूर ऑर्गेनाइज किया था किसी विलेज का, शायद इसी विलेज का, बट हम लोग सोते रह गए थे। पापा तो सुबह गए थे गाइडेड टूर में, बट मेरे हस्बैंड और मैं सोते रह गए थे, तो अब हम दोनों अभी जा रहे हैं। मेघालय में आपने सुना ही होगा मोलिनोंग करके एक विलेज है विच इज द क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। तो इस बार तो हम लोग वो नहीं जा रहे हैं, बट ऑनेस्टली यहाँ पर हर विलेज ही क्लीन विलेज है। आप पूरे रोड पे देखिए, आपको कुछ भी गंदगी नहीं दिखेगी एंड इट्स सो नाइस, बट ऑल्सो वेरी शेमफुल फॉर अस कि ये जो बेयर मिनिमम नेसेसिटी होनी चाहिए, साफ सुथरे सड़क, साफ सुथरे गांव, वो भी हमको लग्जरी लगती है। एंड इट्स बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज वी एज पीपल लैक सिविक सेंस। I'll give you a quick tour of the outdoors of our resort. It's a very nice property. अब हम तैयार होकर के निकल गए हैं आज के पूरे दिन के लिए। आज हम सबसे पहले जाने वाले हैं उमकर रूट ब्रिज। ये डबल डेकर रूट ब्रिज नहीं है जो कि बहुत फेमस है, तो हम वहाँ नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैक करके जाना पड़ता है। दिस वन इज अ लिटिल लेस एक्सप्लोर्ड। इसमें भी थोड़ा सा ट्रैक है बट इतना ज्यादा नहीं है। ऐसा लग रहा है पूरे जंगल में बस हम ही लोग हैं। पहुंच गए हम लिविंग रूट ब्रिज पे। These bridges are sustainable masterpieces. ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है टू शो द हार्मनी बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बीइंग्स। बिना नेचर को डिस्टर्ब किए हुए कैसे लोगों ने अपने लिए रास्ते बनाए हैं और अपना जीवन आसान किया है। These kind of things are the perfect example for it. ये रबर ट्री के रूट्स वो जब यंग ही होते हैं तो लोग उनको आपस में इंटरट्वाइन करके लोगों ने बनाया होता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। यहाँ पर अगर आप मुझे कहें कि तुम किसी डेस्टिनेशन पे मत जाओ, किसी व्यू पॉइंट पे मत जाओ, बस रास्ते में गाड़ी से या पैदल घूमते रहो, इवन देन आई विल बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि यहाँ के रास्ते भी इतने सुंदर हैं। कहीं भी देखेंगे तो आपको नेचर ही दिखेगा, आपको सुंदरता ही दिखेगी। और जिस तरह की जिंदगी हमें जीने की आदत हो गई है ना, और जिस तरह के माहौल में रहने की आदत हो गई है, कॉन्क्रीट जंगल में रहने की आदत हो गई है, पोल्यूशन में रहने की आदत हो गई है, दिस जस्ट फील्स सरियल कि आप कंक्रीट के जंगल में नहीं, आप रियल जंगल में हैं। आप आसमान के असली रंग देख पा रहे हैं, पोल्यूशन नहीं। इट रियली फील्स लाइक अ वंडर। हम पहुंच गए हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है वाइसाडोंग वाटरफॉल। और वाटरफॉल तक जाने के लिए हमको थोड़ा सा नीचे ट्रैक करके जाना पड़ेगा। तो ये है वो वाटरफॉल तक जाने का रास्ता और हम चलते हैं नीचे। यहाँ के बाद हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल के नीचे तक। वहां तक जाने का रास्ता बहुत स्लिपरी है, स्टीप भी है और पूरा बैम्बू का ट्रैक है। तो गाइज मैं इसमें रिस्क नहीं लूंगी और मैं आपसे मिलती हूँ नीचे जाके।
लोग वापस ट्रैक करके ऊपर जा रहे थे तो मुझे सडनली ये ऐसे वाले लीव्स दिखे। दीज आर ब्यूटीफुल एंड आई एम गोइंग टू कीप देम विद मी। मेघालय की निशानी। रास्ते के हमको व्यूज इतने अच्छे लग रहे हैं कि हमने ऐसे ही रैंडम किसी भी रैंडम जगह पे गाड़ी रोक दी है और हम यहाँ पर बहुत मजे से काफी देर बैठे हैं। गुड मॉर्निंग गाइज। सो टुडे इज द नेक्स्ट डे। कल हम लोग वाटरफॉल से आने के बाद बस होटल चले गए, फिर ज्यादा कुछ किया नहीं और आज हम यहाँ से वापस शिलोंग जाएंगे। आज का दिन हमने फ्री रखा था कुछ भी स्पॉन्टेनियस करने के लिए, तो आज हम वापस से जा रहे हैं लैटलम कैनियन। इसके पहले भी जब हम शिलोंग में थे तो हम वहाँ गए थे और उसका मैंने व्लॉग भी डाला है गाइज, तो आप लोग प्लीज उसको भी देखिएगा। और हमें वहाँ बहुत अच्छा लगा था, बहुत मजा आया था। एंड यहाँ पर इस ट्रिप में हम और भी बहुत सारी जगह जा सकते थे बट हम लोग रश नहीं करना चाहते थे और ऐसे बस हर पॉइंट को छूना नहीं चाहते थे। हमने शुरू से ही ऐसे प्लान किया था कि हम जहाँ भी जाएं वहाँ तसल्ली से घूमें और जो हमारा वेकेशन है वो वेकेशन टाइप ही फील हो। वेकेशन से घर आने के बाद हमें ऐसा फील ना हो कि वेकेशन की थकान मिटाने के लिए हमको वेकेशन चाहिए। We got nowhere to be, just a slow dance with the summer heat. World outside can't wait a few, 'cause right now we got nothing else to do. The sun is peeking through the cotton white blinds, your hands still tangled up in mine. Feet on the wall, your head on me, floating easy. जितने दिन हम यहाँ मेघालय में रहे हैं, आई फील यू नीड टू एक्सपीरियंस मेघालय एंड यू नीड टू फील इट, नॉट जस्ट सी इट कि हाँ ये भी टच कर लिया, ये भी टच कर लिया, ये भी टच कर लिया। तो हम लोगों ने इस बार पूरी प्लानिंग ऐसे ही की थी कि हमको किसी भी दिन कहीं भी रश नहीं करना है। हम एकदम आराम आराम से जाएंगे। जहाँ हमारा मन करेगा कि यहाँ और बैठें तो हम बैठेंगे, जहाँ हमारा मन करेगा हम रुक के पैदल चलेंगे, जहाँ हमारा मन करेगा हम खा लेंगे। ठंड लग रही है गाइस। We got nowhere to be, got nowhere to be. हम लोग डॉन बॉस्को म्यूजियम गए। वहाँ पर वीडियो लेना अंदर अलाउड नहीं है बट फोटोज के लिए आप अलग से एक पास ले सकते हैं। हमने लिया था। बहुत अच्छा है। अगर आप आर्ट और हिस्ट्री और कल्चर ये सब चीज में इंटरेस्टेड हैं तो आपको बहुत मजा आएगा। Now finally we are going to our hotel. आज हम डिफरेंट होटल में रुक रहे हैं शिलोंग में। इसका नाम है आयोरा और इसका इंटीरियर और सब कुछ इतना सुंदर था। I don't know how I misplaced all the footage that I recorded. मुझे इतना अफसोस हो रहा है but it was very beautiful. आज फाइनली हम निकल रहे हैं शिलोंग से गुवाहाटी के लिए और शाम को हमारी गुवाहाटी से ट्रेन है। आई ऑलमोस्ट डोंट वांट टू गो होम क्योंकि घर जाएंगे तो कल से काम करना पड़ेगा।
शिलोंग को फाइनल गुड बाय बोलने से पहले हमारा एक और डेस्टिनेशन बाकी है, विच इज़ अ हिडन जेम ऑफ मेघालय। इसको मिनी पहलगांव भी बोलते हैं। इसका नाम है लूम एयर फिंगार्ड। इट्स अ ब्यूटिफुल हिडन मेडो। This is a 50 minutes drive away from Shillong and it's on the Shillong-Guwahati highway. You just laugh, let it fall where it lies. Coffee's cold, but we take a sip, talk about nothing. Let the morning slip. Oh, it feels like that. I'm leaving a piece of my heart here and taking a little bit of Meghalaya with me. हम लोग शिलोंग से निकल गए हैं फाइनली गुवाहाटी के लिए। हमारी ट्रेन कामाख्या स्टेशन से है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो थैंक यू वेरी वेरी मच। आई होप यू लाइक्ड इट। Please leave your feedbacks in the comment section. If you haven't watched the first part of the trip, it's linked in the description below. And I will see you in the next video. Bye!